Success. See, success can be happiness, success can be earning money, success can be serving others. Thank you very much. This is my first, I would say, appearance at Dr. Ken Modi Global School, and I'm thankful to the principal sir for inviting me over here, and Pooja ma'am, who has been instrumental in getting this session done, and to all my students, teachers over here. I'm really thankful and obliged to be part of this session in the morning today. Mornings should be full of energy, isn't it? Right? So, good morning once again. Great. So, when we talk about career, अगर हम करियर की बात करेंगे, so what comes first in your mind? जब हम करियर की बात करते हैं, बहुत अर्ली हो जाता है, अभी क्लास 9th में है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आई कॉल अंडरस्टैंडिंग इनर सेल्फ. अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे अंदर से, तो करियर भी बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं. करियर इज फॉर नेक्स्ट 40 years. हमारी लाइफ के साथ करियर चलता है. हमारे पर्सनल गोल्स भी होते हैं. पर्सनल गोल्स कैन बी टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर, टू हैव एथिक्स, राइट. ऐसे ही करियर गोल्स में आपको व्हाट यू वांट टू बी और व्हाट यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं और आप एक्चुअली क्या हैं, हु यू आर. सबसे मुश्किल सवाल ये होता है टू अंडरस्टैंड हु एम आई. इफ आई कैन डिस्कवर दिस, it will be very easy for me to find out what career I, or what kind of group I, what kind of community I belong to, isn't it? It's the biggest discovery that we can make, that is self discovery. इसके लिए बहुत लोगों ने कोशिश करी हुई है, बहुत सारे व्यूज हैं इसके ऊपर, बहुत सारी किताबें हैं टू डिस्कवर योर सेल्फ. क्योंकि जो खुद को डिस्कवर अच्छे से कर लेता है, उसके लिए करियर डिस्कवर करना भी आसान हो जाता है. सो अगर हम बात करें आपकी स्टेज पर क्लास 9th, ये क्लास 9th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपकी क्लास की बात करें, व्हाई दिस क्लास 9th इज मोस्ट सिग्निफिकेंट. क्या कोई एक जवाब मुझे दे सकता है कि क्लास 9th व्हाई इट हैज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस? आपने नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक भी पढ़ाई करी है, राइट. अब क्लास 9th क्यों अलग है सबसे? मैं आपको एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा क्लास 9th के लिए, और ये बिल्कुल सही टाइम पर ये काउंसलिंग हो रही है. जब क्लास 9th की बात करते हैं, right? Why class 9th? Anyone who can have a guess that why class 9th is so significant? Yes, please. 9th class is the base for class 10th and higher studies later. Okay, that is one aspect. Okay, I respect your opinion. Fine. What else? Can someone have some different idea than what she said? Yeah? It is our first step towards our career. 9th is the first step towards your career. But career, कई लोग बहुत छोटे होते हैं, क्लास 5th 6th में, तब भी वो एक मन में एक इमेज बना लेते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर. नहीं तो पेरेंट्स कह देते हैं आपको यही बनना है. ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स आपके लिए कुछ ड्रीम्स रखते हैं,
कि you have to become this, you have to fulfill parents' aspiration. वो सही हो या गलत वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे. बट क्लास 9th इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग नहीं पहुंच पाओगे वहां तक. इट इज बिकॉज क्लास 9th is the first class from where your marks get counted internationally. If suppose any one of you has international dreams, suppose you want to study in world's best college like UC Berkeley, suppose in US you want to apply, or to that Ivy League University of Pennsylvania. Let's say you want to apply into University of Oxford, Cambridge. Now first thing they are going to ask is class 9th marks. They will not start from 8th. They will start from class 9th. So if you have exceptional record of your class 9th, you are really good with your academics of class 9th, and continuing from class 9th, 10th, 11th and 12th, if your grades are like this, right, then you have a great choice, great career. And let me assure you, if you are brilliant in your academics, if you are good in your academics, you are crossing 90s in 9th, 10th, 11th and 12th, you may get some fantastic scholarships from the world's best, I would say, universities to study. Isn't it a great thing that you not only get into the world's best college, but you also get scholarship up to 100%. You can study in MIT, you can study in Harvard, right, without spending a single penny, right, on tuition fees. Do you agree with me? So how many of you are, but the question is, how many of us are academic? How many of us excel into academics? Everybody is not going to get rank 1, rank 2. What next? Everybody is not going to get these ranks. Everybody will not get 95% plus. So what happens with others? My question to you is, now the next question is, can average people, average marks get you a good career? My question to you is this: can average marks get you a career? Yes. Everybody can get a career. There are a few things you need to work upon. Is it? Actually, it will take some time. So I'm continuing. So when we talk about average marks, we do not talk about leading a average life. A person who may be getting average marks might not be average in his decision making, in her decision making. That person might be brilliant in other aspects, other fields, maybe not in academics. What if you are an excellent musician? What if you are a sports person? What if you are an actor? What if you are an artist? Right? So some skills, some areas in which you are, self-aware about yourself. आपको मालूम है कि इस एरिया में आपसे अच्छा कोई नहीं है, and you have good idea about it. So you can excel into that area as well, and that area can become your career. And those are called, sometimes people call it merely a hobby. Can hobby be a career?
Hobby can be a career. And hobby can lead to some excellent, I would say, results in terms of happiness. Happiness quotient अगर मैं बोलूंगा तो happiness quotient कुछ अलग ही होगा जिनका हॉबी के साथ करियर जुड़ जाए. Isn't it? So what if some of you are great singers or dancers or musicians or maybe designers, as I said earlier, sculptors. कोई ना कोई स्किल आपके पास है अगर, right, you can excel into a career, into that career. And let me tell you, if you are 100 students over here, right, each one of you can have a separate career. You all are individually different. Unfortunately, क्लास 9th and 10th में पेरेंट्स हमको कुछ ये कह लीजिए कि करियर अवेयरनेस कम है. हम केवल 10 या 12 करियर्स की जानकारी रखते हैं. And if we are aware about only 10 to 12 careers, what will we do? We will choose only out of those 10 to 12 careers. If I ask even the topper of class 9th of all sections and I ask you what would you like to become, आपका आंसर एक मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक आंसर होगा. I want to become a doctor, I want to become an engineer, I want to become a chartered accountant, I want to become a civil servant, I want to become a lawyer, yeah, I want to be into business. इसके अलावा यही सुनने को मिलता है. There are more than, for your information, there are more than 6,500 careers. And our awareness is limited to only 10 to 12 careers. Because of which, what happens? We tend to listen these news that 24 lakh people are sitting only into one exam, that is NEET. 15 lakh people sitting only into one examination, that is JEE. Why? Because we have no knowledge about other careers. And that is why there is a mass level, I would say, concentration in few careers. उसका रिजल्ट क्या होता है? There is huge competition. We have very less number of seats into IITs or medical. And as a result, there are a lot of failures that are turning out of medical and engineering. Everybody cannot get into IIT or government medical colleges. And that is the result. A lot of people face, stress issues, anxiety, बहुत डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है. वी सी पीपल स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स. कोटा फैक्ट्री नाम बोला जाता है. पीपल स्टार्ट टेकिंग डमीज. हम करियर्स की बात करें तो ऐसा क्यों ना करें कि एक नए करियर की बात करें, जैसे चॉकलेट इंजीनियर. प्लीज, आप लोगों को चॉकलेट्स पसंद हैं, राइट? तो बात ऐसा क्यों नहीं कि ऐसे करियर्स की करें जो हमें पसंद हो. कैन यू बिलीव यू कैन बिकम अ चॉकलेट इंजीनियर ऑल्सो. लेकिन किसी को नहीं पता है कि चॉकलेट इंजीनियर कैसे बना जाता है. Isn't it? You can, some of you, those who are daring, adventurous, can get into adventure sports, biking, as a career. कहां सीखने को मिलता है? You have proper academies where you learn that. Scuba diving as a career. ये careers
हमारे कंट्री में इतने प्रेवलेंट क्यों नहीं है? बाहर के लोग ही इसमें क्यों इतना नाम कमा ले जाते हैं और हम लोग केवल जॉब ढूंढते रह जाते हैं? हमारे पेरेंट्स का पहला थॉट होता है कैसे भी करके पढ़ाई का मतलब है टू गेट अ जॉब, कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। अब उन्होंने अपने आसपास ये देखा कि काफी लोगों ने इंजीनियरिंग की और वो जॉब में चले गए, राइट? तो उनको लगता है कि शुरुआत के लिए हम ऐसे भी जॉब कर सकते हैं कि ठीक है इंजीनियरिंग ही करा देते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप लोग अवेयर नहीं होंगे अपने बारे में तो आप लोग यू विल स्टार्ट एक्चुअली taking up careers of somebody else, aspirations of somebody else. आपकी एबिलिटी कुछ और है और करियर कुछ और कर रहे हैं आप। तो एस्पिरेशन जो हम बनना चाहते हैं और हमारी एबिलिटी वो मैच होनी चाहिए। और ये सबसे मुश्किल काम होता है करियर काउंसलिंग में जो हम करते हैं, कि आपकी एस्पिरेशन को क्लियरली समझाना कि ये एस्पिरेशन आपके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, बट वी विल हैव टू चेक वेदर यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट और नॉट। इफ आई एम नॉट गुड विद मैथ्स, आई विल नेवर बी गुड विद साइंसेस। ये फैक्ट है। और बहुत सारे लोग, कैन यू इमेजिन, पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टू बिकम अ डॉक्टर। उनको यह नहीं पता होता है कि इंटरनेशनल जब जाएंगे आप साइंस पढ़ने तो इंटरनेशनल सिनेरियो में मैथ्स इज कंपल्सरी इवन फॉर डूइंग मेडिकल। ये केवल हमारे कंट्री में ऐसा हो रहा है कि हम पीसीबी के बाद वी कैन सिट इनटू नीट एंड बिकम अ डॉक्टर। But internationally, if you want to study science, you need to have maths. And आपसे ही पूछता हूं मैं, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है तो क्या उसका फिजिक्स अच्छा हो सकता है? जब आप इतने कॉन्फिडेंटली मुझे आंसर कर सकते हो तो ये गलती करते क्या हैं, कैसे करते हैं? How do we do this mistake? बहुत मुश्किल हो जाता है ना ये फिजिक्स पढ़ना बायो के साथ। 11th-12th की बात कर रहा हूं, वहां पर सिलेबस इज एक्सपोनेंशियली डिफरेंट देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आप 9th-10th की मैथ्स सोच के अगर उसी को 11th-12th में सोच के ले लेंगे तो बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो सकता है अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है। और ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ करियर्स विच आर नॉन मैथ्स। उन करियर्स को भी तो कर सकते हैं जिसमें मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। करियर्स जैसे लॉ, राइट, करियर्स जैसे डिजाइन में कोई जरूरत नहीं है मैथ्स की। करियर्स लाइक फिल्म मेकिंग, बैचलर्स इन फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म्स बनाना या बड़ी फिल्म्स बनाना, राइट, एक बहुत बड़ा करियर है आज के टाइम का। बैचलर्स इन मीडिया, जर्नलिज्म, कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं विच आर नॉन मैथ्स। तो आप ये पहचाने कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट एकेडमिकली क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स को आप नेचुरली कर लेते हैं। अगर एकेडमिक्स की ही बात हो रही है तो आप ये जरूर अपने आप से पूछ सकते हैं, डू आई नीड ट्यूशंस टू स्टडी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री? तो ये सब्जेक्ट्स आपके लिए नहीं है फिर, अगर आप ट्यूशंस पे ही डिपेंडेंट हैं। इसमें कंपटीशन वो निकालता है जो सेल्फ एफर्ट करता है।
जिसको ये सब्जेक्ट्स खुद समझ में आते हैं, नेचुरल एबिलिटी, किसी के समझाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। आपके मार्क्स 50 आ रहे होंगे, 60 हो जाएंगे, राइट। लेकिन आप ये सोचें कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, और लाइफ में आप केवल दूसरों के सहारे, आप दूसरों से पूछ पूछ के अपना करियर बना सकते हैं, तो दैट विल नेवर हैपन। लेट मी टेल यू, जिस एरिया में आप इंडिपेंडेंट हैं, द एरिया विच यू लाइक, वेयर यू स्पेंड योर टाइम, राइट, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, यू नो वेयर विच ऑल एक्टिविटीज यू स्पेंड योर टाइम, आपको अच्छा क्या लगता है, दैट इज एन एरिया which you should concentrate towards seriously, you know, making out a career. जितना डिपेंडेंसी दूसरों पे कम होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे, और जितनी डिपेंडेंसी औरों पर होगी उतनी नेचुरल एबिलिटी आपकी उन सब्जेक्ट्स को डील करने में कम है। Are you getting? Okay, so if I ask you, how do you identify your strength? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स को समझते हैं? कैसे समझेंगे उसको? What are your strengths and interests? अगर मेरा क्वेश्चन ये है आपके साथ, so how would you understand this? कैसे समझें कि हमारी स्ट्रेंथ ये है, हमारे इंटरेस्ट ये है? सबसे मुश्किल सवाल हो जाता है। कोई आपसे पूछे कि टेल मी योर स्ट्रेंथ, टेल मी योर इंटरेस्ट, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं, फिर क्या आंसर दें इसका। तो क्या बोल सकते हैं आप अपने नेचुरल एबिलिटी टू डील विद सब्जेक्ट्स? ये क्वालिटी के हिसाब से, और कितना ज्यादा आप इंडल्ज करते हैं अपने इंटरेस्ट में, कितना ज्यादा समय देते हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या उस काम को जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। बात ये नहीं कि आई हैव इंटरेस्ट इन टू दैट लेकिन मैंने कभी करा नहीं। आई हैव नेवर डन दैट। आई हैव इंटरेस्ट इन टू प्लेइंग क्रिकेट बट मैं कभी खेलता नहीं, बस आई ओनली वॉच। I have interest into singing, but I never sing. So that is not the point. Point is, whatever you do, आप करना बहुत important है। Work that you do makes you perfect. Are you getting? So आप में से आप लोग मुझे बताएं क्या स्ट्रेंथ, कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ डिस्कस करें मेरे साथ। How you will identify your strength? Yes. Someone who would like to discuss what strength you have, someone who would like to tell क्या स्ट्रेंथ आपको लगती है अपनी, कोई भी बोलिए। What strength you have? बैठे बैठे बोलिए। Curiosity. Curiosity. This is wonderful. If you have the ability to ask questions, curiosity is that I try to discover things by asking questions. If that is the strength I have, means I am open to learning. I learn very quickly. कि अगर मुझे ये मालूम हो, राइट, कि मेरे आसपास क्या है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलते रहे, then I can actually learn those things pretty fast. That's good. And someone else, curiosity is one thing that makes you stand out. What else?
Yeah. Sorry, I don't have mic. Otherwise, I means I cannot leave this. You can come this side. Yeah. So discovering new things about life sciences, how it works, how it means, how it takes place, how it happens. Okay. So you have interest in sciences. Yes, sir. Okay. What's your name? Natik one. Natik. So Natik has interest in sciences. To know about finding new discoveries, to discover the things around him in sciences, exploring the things. That is your interest. Okay, that's good. Natik. And you? Sir, I love to contemplate life mysteries about human existence and more. Okay, so you love to find human mysteries and you love to read about them. Yeah. So you are a language person. So she loves to read language. So language and literature. So you have a particular career into it, I will tell you. What's your name? Sir, Riddhi. Riddhi. Okay, Riddhi. You also tell. Sir, my strength is to learn many things about some persons or just how you counsel about our career. I counsel. You mean to say human behavior, trying to study, try to see how people interact and learn from that? Okay, that's also nice. What's your name? Sherry. Chevy. So good. So you have some different replies in terms of strengths or interests that you have. Now, how do you apply? Now, what you said about probably the reading part. So I am sure you might be having reading habits, right? So if you have reading habits, then possibly you have many careers. अगर आप रीडिंग करते हैं फिक्शन की कहानियां पढ़ते हैं सो यू हैव स्क्रिप्ट राइटिंग एज अ करियर स्टोरी टेलिंग एज अ करियर कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर ये अपने आप में आज के टाइम के बहुत बड़े करियर्स हैं राइट और किसी को साइंस में जैसे इंटरेस्ट है नैतिक को तो यहां पर व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स then possibly हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं we are trying to find mysteries in sciences because science is so big you need to have answers to each and everything so you have astronomy right you have biochemistry you have agriculture horticulture you have so many branches of science you have even in a particular I would say technical areas you have artificial intelligence robotics that area you have cloud computing so such areas how they work you need to be good with maths in case you can be good with maths you can apply your knowledge to these fields and we can gradually try to identify what is our career abhi nahi pata chalega but there is a way to find it out. I will tell you how to find your career, how to understand what kind of career you will get into. Right? So I will take you into the beginning, and I call it as profile building. Profile कैसे बनाते हैं? Class 9th and class 10th ये 2 साल आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए होते हैं इन 2 सालों में यू शुड ट्राई टू अचीव सम स्किल लेवल एक होता है मैंने केवल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एक होता है मुझे मेरे सब्जेक्ट्स के अलावा मुझे आई ऑल्सो नो हाउ टू वर्क इन दैट एरिया इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन आपको काम क्या आता है राइट आप ये नहीं कह सकते दैट आई हैव स्टडीड फिजिक्स आई हैव स्टडीड मैथ्स आई हैव स्टडीड सोशल साइंसेस मेरा क्वेश्चन फिर यही रहेगा आप पर आपको काम क्या आता है व्हाट वर्क डू यू नो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट ये 3 चीजें आपको ध्यान देनी है आप 9th and 10th में यू हैव टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए
जो कि लाइव प्रोजेक्ट्स हो, वर्किंग प्रोजेक्ट्स। एक होते हैं हमने मॉडल्स बना दिए थर्माकोल शीट से और उन मॉडल्स को डिस्प्ले करके ये बता दिया कैसे काम होता है। लेकिन एक होता है लाइव बनाना, उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर फंक्शनैलिटी लेकर आना, वो ऐसे फंक्शंस होना कि एक्चुअली वो वर्क करे। जैसे बेसिक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आप बेसिक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स समझ सकते हैं, बेसिक वुड वर्किंग जान सकते हैं। अगर मुझे मोल्ड करना हो एक लकड़ी के टुकड़े को तो कैसे मोल्ड करा जा सकता है, आई नो दैट, आई नो हाउ I can mold plastic, I know how I can mold metal, and I can create shapes. I know how to 3D print that. 3D printing कैसे होती है आज के टाइम? कैन यू बिलीव आने वाला टाइम कैसा है? ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं ना, ये बिल्डिंग्स अभी सीमेंट की आपको दिख रही हैं, ये आने वाले टाइम में सारी बिल्डिंग्स बायो मटेरियल से बनेंगी, सस्टेनेबल मटेरियल से बनेंगी। और ये बिल्डिंग्स आप ये खुद लिविंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। लिविंग स्ट्रक्चर्स का मतलब बिल्डिंग्स विल बी एबल टू ब्रीथ, बिल्डिंग्स अपना वेस्ट खुद मैनेज कर लेंगी। ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करे जाएंगे जो स्ट्रक्चर्स ब्रीदेबल होते हैं। इस फील्ड को बोला जाता है बायो आर्किटेक्चर। आप वो स्ट्रक्चर्स, वो फील्ड्स बनाएंगे। यस, ऐसे एग्जाम्पल्स अभी क्या है, अब जैसे दिल्ली में भी कुछ जगह पर ऐसे टॉवर्स क्रिएट करे गए हैं बायो मटेरियल्स के साथ, जिसमें ये ग्रीन जितना भी कंटेंट होता है ट्रीज का, उनको लेकर के और ऐसे फ्यूल्स को लेकर के उनको मतलब एक टॉवर खड़े करे गए हैं जो कि वो खुद ब्रीथ करते हैं। और जितनी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या पॉल्यूशंस है उसको खींच लेते हैं और फ्रेश एयर उस पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में थ्रो करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आप ये मानकर चलिए बन के आएंगे। अभी बिल्डिंग्स के ऊपर काम हो रहा है, आप जो मटेरियल सोच रहे हैं वो 3D मटेरियल, 3D प्रिंटिंग हुआ करेगी बिल्डिंग। अभी आप देखते हैं ब्रिक से बनती है, एक बाई एक लेयर के बाद दूसरी लेयर लगती है। फिर क्या होगा, बड़े बड़े 3D प्रिंटिंग मशीन से एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, वो भी बायो स्ट्रक्चर, जो कि ब्रीदेबल होता है, लिविंग होता है। अभी क्या है, कॉन्क्रीट है, नॉन लिविंग है जिस स्ट्रक्चर पर हम खड़े हैं, राइट। लेकिन यही स्ट्रक्चर अगर ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स हो जाए, अगर बायोफ्यूल्स इसमें लिविंग स्ट्रक्चर्स ऐड हो जाएं, प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग बीइंग्स है ना, तो वहीं से एक्सट्रैक्ट करके हमने वो मटेरियल्स क्रिएट कर दिए, उसके ऊपर रिसर्च हो रही है अभी। ये सारे करियर्स बाय 2030 आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आपने अभी जो चेंजेस आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में देखे, अभी जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बेसिकली वो क्या है, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज। सो फ्यूचर इज इन सोलर, फ्यूचर इज इन विंड। ये ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर आप, अगर आप साइंस बेस्ड करियर्स चाहते हैं, सो देन दीज आर द करियर्स। और अगर आप सपोज किसी ने ये भी बताया दैट आई हैव इंटरेस्ट इनटू ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी में इतने सारे करियर्स है। वन इज ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, जिसमें बहुत सारे एरियाज हैं। आप उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी अलग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अलग कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी अलग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज के ऊपर स्टडी होती है, वो साइकोलॉजी बेस्ड है। सो वो भी एक साइंस है। आप वैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत करियर है आने वाले टाइम में। मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस,
इतना बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, राइट। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप अगर थोड़े क्रिएटिव हैं, राइट, आप में से अगर कुछ लोग क्रिएटिव हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं, तो आप उसके जैसे करियर्स बहुत सारे हैं। जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, आप टॉय मेकिंग, आपको एक सिंपल बता रहा हूं, टॉय मेकिंग इज अ सेपरेट करियर, टॉय डिजाइन इज अ सेपरेट करियर, इतना प्रीमियम करियर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो इनकम एक टॉय मेकर की हो सकती है, वो एक इंजीनियर या कोई एक डॉक्टर मैच भी नहीं कर सकता। जहां आपकी सिंपल मैकेनिकल टिंकरिंग अगर आपको आती है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज हो, तो आप टॉय डिजाइन एज अ करियर ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे करियर्स हैं जिसमें आप अगर इंडिविजुअली जाना चाहेंगे तो 9th से आप प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करिए। जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप, उतना कॉन्फिडेंस आप में आता जाएगा, और प्रोजेक्ट्स हर फेज में बन सकते हैं। यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स इन राइटिंग, अगर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो छोटी छोटी फिल्म्स बनाइए, मोबाइल से शूट करिए, राइट, उसमें एडिटिंग करके उसको कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट करिए। सो ट्राई टू मेक पॉजिटिव प्रैक्टिकल वर्क। देन यू हैव इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स के लिए क्या होता है, यू हैव बैकिंग ऑफ इंडस्ट्री, जहां पर आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करा, अब उसी प्रोजेक्ट को आपने इंडस्ट्री के साथ करा। सपोज यू डिड अ स्मॉल स्टेंट विद डोमिनोज, आपने डोमिनोज को यह हेल्प करी कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपने 20 days 1 month जब आपकी वेकेशन थी, यू कुड हैव डन अ स्मॉल इंटर्नशिप विद डोमिनोज, राइट। या कोई भी किसी भी कंपनी, आप मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिंपल ब्लॉग्स लिख सकते हैं ट्रैवल के ऊपर, व्लॉगिंग कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, राइट, पॉडकास्ट कर सकते हैं। ये कोई छोटे करियर्स नहीं, आज के टाइम दे आर बिग करियर्स, राइट। तो ये प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, अगर आप ये दो चीजों के ऊपर ध्यान देंगे अभी से, तो मानकर चलिएगा कि आप यू कैन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ स्टार्टर्स, जिनको जॉब की नहीं, अपने बिजनेस करने की एक्सपर्टाइज होती है, उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो छोटे छोटे रिस्क लेके दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स। Entrepreneurs are business minded people, those who can play with ideas, नए आइडियाज को लॉन्च करके उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू hundreds ऑफ पीपल। तो आज का टाइम स्टार्टअप्स का है, राइट। आज का टाइम इट इज नॉट फॉर जॉब्स ओनली। सो आपको अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना है, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, तो ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एंड उसको पॉसिबिलिटी शुरुआत होगी, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स बना करके इंटर्नशिप में जाइए, थोड़ा सा छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लीजिए, एंड ग्रेजुअली आपकी जो भी स्टडी होगी उसके हिसाब से यू कैन बिकम गुड एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। सो आई वॉन्ट टू शो यू सम स्लाइड्स ऑफ some top colleges। आपको कुछ नाम तो पता होने ही चाहिए of some top universities। इंडिया में आज के टाइम बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस आ चुके हैं। पिछले 5 से 10 साल में यू हैव गॉट सम एक्सीलेंट कॉलेजेस। उनमें पहुंचना इट्स नॉट इजी, यू विल हैव टू डेवलप योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे मैंने आपको बोला अभी कि आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, इंटर्नशिप्स करें, अगर आप इस तरह से काम करेंगे तभी इन कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। इसमें कुछ बिल्कुल टॉप एंड कॉलेजेस में इंडिया में जो नाम आ रहे हैं
आज के टाइम पर वो है अशोका यूनिवर्सिटी. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ करंट टाइम्स. देन यू हैव क्रिया. क्रिया इज अगेन अ कॉर्पोरेट एंटिटी. ये श्री सिटी आंध्र प्रदेश में है. ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है क्रिया, जहां पर आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट स्टडी करने को मिलते हैं. यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स कि मेजर मुझे इसमें करना है और माइनर, क्योंकि एक पर्सन के पास मल्टीपल कैपेबिलिटीज होती है. ये जरूरी नहीं है कि मेरी कैपेबिलिटी केवल मेरी 3-4 कैपेबिलिटीज है, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई केवल एक सब्जेक्ट में करी या मैंने केवल इंजीनियरिंग कर ली तो मेरी म्यूजिक छूट गई या मेरी डिजिटल आर्ट छूट गया. तो ये दिस विल नॉट हैपन इफ यू विल गेट इनटू कॉलेजेस लाइक अशोका क्रिया, क्योंकि यहां पर मेजर और माइनर आपको कम से कम 400 सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए मिलते हैं. नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जब आप जाते हैं आपको सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं कि ओके नाउ यू डू बीए, बीएससी, बीकॉम, यही सब्जेक्ट्स हैं आपके. यहां पर ये कहते हैं आप अपनी डिग्री के सब्जेक्ट्स खुद डिसाइड करिए. यूनिवर्सिटी विल नॉट डिसाइड, यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी. सो ये वो कॉलेजेस हैं अशोका, क्रिया, प्लाक्षा. दीज आर, प्लाक्षा इज इन चंडीगढ़. बीटेक, यहां इस तरह की बीटेक होती है जो कहीं नहीं होती, आईआईटीज में भी नहीं होती. यहां पर बीटेक डेटा साइंसेस में, बीटेक इन इकोनॉमिक्स, बीटेक इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स को आप सोचते हैं कॉमर्स का फील्ड है, बट बीटेक इन इकोनॉमिक्स इज पॉसिबल इन प्लाक्षा, मींस डेटा साइंसेस. और बीटेक इन बायो सिस्टम्स इंजीनियरिंग, बीटेक बायो में. जो ऐसे कोर्सेज जो इंडिया में कहीं नहीं हैं, you will find these courses in these universities. Some excellent prospects. Why? Because they are slightly liberal. They are liberal in nature. They will allow you to pick up your electives, majors, minors. They will allow you to pick up as many subjects that you want to study. USA में इनकी बराबरी, मतलब USA में जाएं तो फिर MIT, हार्वर्ड, UCB. अब यूके में जाएं तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स, इंपीरियल, ये बिल्कुल टॉप एंड है. कनाडा में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैगिल, ये टॉप एंड यूनिवर्सिटीज है. ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, एडिलेड, मोनाश, क्वींसलैंड, ये कुछ टॉप नेम्स हैं. एंड वी हेल्प यू टू गेट इनटू दीज यूनिवर्सिटीज by building your profile from class 9th onwards. So 9th से लेकर के 12th तक we build your profile according to these universities and help you get into these universities with scholarship. Are you getting? Right. So these are some of the finest universities. Can we move ahead? We'll just try to close. हाँ, इनके application deadlines होते हैं. जो मेरे से पूछना चाहेंगे अलग से, आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटली व्हेनेवर यू विल लाइक टू हैव एन इंडिविजुअल काउंसलिंग विद मी, राइट? बट देयर आर सम प्रोसीजर्स ऑफ स्टडी अब्रॉड. देन नेक्स्ट, या सो आज का सेशन थोड़ा रिकॉर्डेड भी है, सो यू विल फाइंड दिस सेशन ऑन यूट्यूब. द चैनल नेम इज लव जैन करियर काउंसलर. सो आप वहां जाएंगे तो आपको आज का सेशन रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा. एंड आपकी जो क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज पुट डाउन दोज क्वेरीज ऑन दिस नंबर विच इज ओवर हेयर, एंड आई विल ऑल्सो टेक योर फीडबैक. वो फीडबैक आपकी क्लासेस में आपके पास जाएगा. यू विल बी एबल टू राइट, मे बी आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट देयर, बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी लेस टाइम. मैं बहुत सारे कोर्सेज कवर नहीं कर सकता था इतने शॉर्ट टाइम में, बट आपको एक बेसिक जिस्ट अबाउट करियर्स, एक बेसिक आइडिया अबाउट करियर्स, आई एम श्योर आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि बहुत सारे अलग तरह के करियर्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें हम जा सकते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच.
Success. See, success can be happiness, success can be earning money, success can be serving others, success has multiple meanings. But true success is if you if you can achieve self-actualization. जैसे आप बनना चाहते हो वैसा आप बन पाओ, राइट? मैं मानता हूं कि वो एक सक्सेसफुल जर्नी हो सकती है, और सक्सेस हमेशा एक जर्नी होती है, कभी एक जगह रुकती नहीं है, राइट? इट कंटिन्यूज। एंड सक्सेस में बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं। ये सारी चीजें आपके जो जितने प्रयास हैं, जितने आप कोशिशें करते हैं, उसमें गलतियां भी करते हैं, फेल भी होते हैं, वो सारी चीजें सक्सेस में काउंट होती हैं। एंड अल्टीमेटली तब हम जाके रियलाइज करते हैं कि हु एम आई, जब हम इस बात का आंसर ढूंढ पाए। सो इट इज सक्सेस फॉर मी। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अगर हम जेई के लिए जाना चाहते हैं, बिकॉज यू आर इन क्लास 9th, इट इज टू अर्ली टू गाइड यू इमीडिएटली फॉर दैट, बट IITs तो है ही हैं। IITs के अलावा अगर हम कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज देखें तो VIT है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन SRM इज देयर, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो मैंने यहाँ बताई है, प्लाक्शा और शिव नादर, ये दो और भी बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं आज के टाइम के लिए। सो प्लाक्शा, शिव नादर, और एक और देखिए आप, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। दीज आर सम फाइनेस्ट कॉलेजेस, एंड आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगी तो आई विल बी एबल टू गाइड यू। यू पीपल कैन हैव सेपरेट interactions with me. I have my number, means my number is there with you, so you can always book an appointment and try to come. Meerut is not a very different or a far place. You can always come here, right? So fine, thank you very much for today. Thank you.